آپ کو خبر دیں، گڈز ٹرانسپورٹرز کے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مذاکرات بے نتیجہ ختم، ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی حسن نقوی سے ٹرانسپورٹرز کے وفد کی ملاقات ختم ہو گئی ہے۔ وفد کمشنر ہاؤس سے روانہ ہو گیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں مطالبات پر کوئی عمل پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ کاوش میمن سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ کاوش، اس معاملے پر اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، گڈز ٹرانسپورٹرز اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج صبح 11 بجے وفاقی وزیر مواصلات کے ساتھ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں کراچی سے بھی متعدد گڈز ٹرانسپورٹر سے وابستہ افراد ویڈیو لنک پہ شریک تھے۔ تاہم وہ مذاکرات 2.5 سے 3 گھنٹے جاری رہنے کے بعد ناکام ہو گئے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد کمشنر کراچی حسن نقوی کے ساتھ دوپہر 3 بجے کے بعد مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، جو شام 5 بجے تک جاری رہا۔ وہاں سے بھی کوئی اچھی خبر سامنے نہیں آئی ہے۔ ابھی تک کی یہی اطلاعات ہے کہ کمشنر کراچی حسن نقوی سے ٹرانسپورٹرز کی ملاقات بے نتیجہ ختم ہو چکی ہے۔ ٹرانسپورٹر کا وفد کمشنر ہاؤس سے روانہ ہو چکا ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کے رہنماؤں سے ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ملکی ہڑتال کو جاری رکھا جائے گا۔ مذاکرات میں کوئی عملی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ اس بار حکومت کے کسی قسم کے وعدوں پر جو ہے وہ کام نہیں چلے گا، بلکہ جب تک عملی طور پر اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے اس وقت تک وہ ہڑتال سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اس وقت ملک کی ہڑتال جاری ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ حکومت غیر سنجیدہ نظر آتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اب تک مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے۔ کاوش میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کاوش، بہت شکریہ۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال تیسرے روز بھی جاری ہے۔ سامان کی لوڈنگ بند، ڈرائیورز کی روانگی، آمدن بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں اور اخراجات نے گاڑی چلانا مشکل بنا دیا ہے۔ رابیل صدیق کی رپورٹ دیکھیے۔ تیسرے روز بھی پہیا جام، گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال برقرار، لوڈنگ بند، ڈرائیورز کی آمدن متاثر۔ ملک بھر میں اشیاء ضروریہ اور دیگر سامان کی ترسیل میں اہم کردار ادا کرنے والے گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال تیسرے روز بھی جاری ہے۔ ہڑتال کے باعث گاڑیوں کی لوڈنگ رک گئی، جبکہ مال برداری سے وابستہ ڈرائیورز اور دیگر محنت کشوں کی آمدن بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں نے پہلے ہی روزگار مشکل بنا دیا تھا۔ ایندھن، کھانے پینے اور دیگر اخراجات نکالنے کے بعد روزانہ کی آمدن انتہائی محدود رہ جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے، کاروبار چلے گا تو ہمارا بھی نظام چلے گا نا، کاروبار بند ہم کہاں چلیں گے؟ گڈ ٹرانسپورٹ کا تو قصور نہیں ہے، قصور سارا حکومت کا ہوتا ہے۔ حکومت اگر ان کے تعاون کرے گی تو ہمارا بھی کچھ کاروبار چلے گا، ہمارے بھی گھر کی دال روٹی چلیں گے۔ ہم پردیس لوگ آتے ہیں، پردیسی سے، ٹھیک ہے، کوئی مزدور طبقہ ہے یہاں پہ، مزدوری کرتے ہیں 4 پیسے کمانے کے لیے، اگر ان کے پیچھے بچے ہیں معصوم ہیں، 500 روپے 1000 روپے میں وہ کس طرح گزارا کریں گے اپنے گھر کا؟ تو یہ حکومت کو اپیل کی جاتی ہے، پلیز ہم پہ غور کیا جائے، اس چیز کے اوپر گڈ ٹرانسپورٹ کا تعاون کیا جائے، ہمارے ساتھ بھی تعاون کیا جائے۔ ڈرائیورز کے مطابق ہڑتال کے 3 دن میں نہ گاڑی چل رہی ہے اور نہ ہی روزانہ کی کمائی ہو رہی ہے۔ بونس اور دیگر آمدن رکنے سے گھریلو اخراجات پورا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کب ختم ہوگی، یہ فیصلہ مذاکرات سے ہوگا۔ تاہم سڑکوں پر کھڑی مال بردار گاڑیاں ڈرائیورز کی مشکلات اور رکے ہوئے روزگار کی تصویر پیش کر رہی ہے۔ کیمرامین عمران ایکی کے ساتھ رابل صدیق، سٹی 21۔ بلٹن میں بات کریں گے جشن آزادی کے حوالے سے۔ اگست کی آمد کے ساتھ ہی بہادر آباد کا آزادی بازار پوری رونق کے ساتھ سج گیا۔ قومی پرچم، جھنڈیاں، بیجز، چوڑیاں اور دیگر سجاوٹی اشیاء خریدنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد یہاں کا رخ کر رہی ہے۔ دکاندار پر امید ہیں کہ یوم آزادی تک خریداروں کا رش مزید بڑھے گا، جبکہ شہری اس دن کو قومی جوش و جذبے اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے منانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں رمشا اسماعیل۔ جشن آزادی کی آمد بہادر آباد کا آزادی بازار سبز ہلالی پرچموں سے جگمگا اٹھا۔ 14 اگست کی آمد کے ساتھ ہی شہر قائد میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ بہادر آباد میں لگنے والا آزادی بازار قومی رنگوں میں رنگ گیا۔ پرچم، جھنڈیاں، بیجز، چوڑیاں، ٹی شرٹس، کیپس اور بچوں کے لیے مختلف ڈریسز کی خریداری زور و شور سے جاری ہے۔ دکانداروں کے مطابق شام ڈھلتے ہی خریداروں کا رش مزید بڑھ جاتا ہے اور یوم آزادی قریب آتے ہی کاروبار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔
रश तो माशाल्लाह बहुत रात में होता है, बहुत सारा रश होता है माशाल्लाह। और ये कि तकरीबन हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, हमने इसको अरेंज किया अलग अलग मार्केटों से, लियाकताबाद सुपर मार्केट से भी, लाइट हाउस, गोल्डन मार्केट, तो 3-4 मार्केटों से इसका सामान बड़ी मुश्किल से हम इसकी वैरायटी अरेंज करते हैं। फिर इसको हम एक तरीके से हमने मेला लगाया हुआ हैदराबाद के, तो रात में जब आप आए तो इधर जो है ना एक मेले का समा होता है, लोग आते हैं फैमिलीज के साथ। बाजार में आने वाले शहरियों का कहना है कि यौम आज़ादी सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि अपने वतन से मोहब्बत और इसके लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को याद करने का दिन भी है। और 14 अगस्त को हम इस अंदाज से बनाते हैं कि जिससे हमारी नस्लों को पता लगे कि 14 अगस्त है क्या। 14 अगस्त एक तजदीद अहद वफा है। 14 अगस्त नाचने गाने का काम नहीं, 14 अगस्त अपने बच्चों को तालीम और परवरिश देने का दिन है। उनको तालीम में ये बताना है ये फ्लैग है जिसके खातिर हमने माइग्रेशन की, अपने बुजुर्गों की जानों की कुर्बानियाँ दी। मेरे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, आज पाकिस्तान तामीर हो गया। दुकानदार पर उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खरीदारी अपने उरूज पर पहुंच जाएगी, जबकि शहरी भरपूर जोशो जज्बे के साथ आजादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। कैमरामैन इमरान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। 400 सब्ज हलाली परचमों की बहार। वालिदैन अपने बच्चों के हमरा खरीदारी में मसरूफ हैं। वालिदैन का कहना है बच्चों के साथ जश्न मनाने का मकसद नई नस्ल को मुमलिकत खुदादाद की अहमियत उजागर कर सके। इस मौका पर नन्हे तालिब इल्म ने मिली नगमा गुनगुना कर वतन से वालिहाना इश्क का इजहार किया है। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में देखिए। इत्तेहाद, तंजीम और यकीनी महकम, मुल्क भर में हुब्बुल वतनी के रंग जश्न का समा। यौम आज़ादी करीब आते ही शहर भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, जबकि बाजार कौमी परचमों, झंडियों और सब्ज सफेद सजावटी अशिया से सज गए हैं। मुख्तलिफ बाजारों में जश्न आज़ादी के हवाले से खुसूसी स्टॉल्स कायम किए गए हैं, जहाँ कौमी परचम, बैजेस, टी शर्ट्स, स्कार्फ, सब्ज सफेद चूड़ियां, कैप्स और दीगर सजावटी अशिया शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। खातून प्रोफेसर का कहना था कि बच्चों को जश्न आज़ादी के हवाले से शॉपिंग पर लाई हूँ ताकि इनके दिलों में वतन की बेपनाह मोहब्बत पैदा की जा सके। सारी मदर्स को ये देना चाहती हूँ मैसेज के अपने बच्चों को लेकर आएं, उन्हें पाकिस्तान की अहमियत भी बताएं और इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगी कि बच्चे खरीदारी करना सीखेंगे अपने मुल्क के खातिर चीजें, उन्हें इसकी अहमियत भी बताएं कि भाई किस तरीके से हमारे मुल्क जो है ये हासिल हुआ, हमें हम किस तरीके से इसकी कदर कर सकते हैं, इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। नन्हे शहरी ने अपनी आवाज में मिली नगमा गुनगुनाकर मोहब्बत से वालियाना इश्क का इजहार किया। मुझ पर दुनिया की नजरें हैं हर पल, मैं आज भी मेरा मेरा होगा कल। मुझ पर दुनिया की नजरें हैं हर पल, मैं हूँ कश्मीर की वादी, मैं गिलगित बल्किस्तान, मैं पाकिस्तान हूँ। बाजारों में सब्ज सफेद रंगों की बहार ने जश्न आज़ादी की खुशियों को मजीद नुमाया कर दिया है, जबकि शहरी अपने अपने अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार करने की तैयारियां कर रहे हैं। कैमरामैन फराज अहमद के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। धोराजी में हबीबिया मस्जिद में जश्न आज़ादी की मुनासबत से परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें चेयरमैन चनीसर टाउन फरहान गनी ने इलामा अजहर हुसैन शाह के हमरा कौमी परचम लहराया है। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। हबीबिया मस्जिद धोराजी में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब। चेयरमैन चेनेसर टाउन फरहान गनी और अल्लामा मुजफ्फर हुसैन शाह ने परचम कुशाई की। जश्न आज़ादी के मौके पर हबीबिया मस्जिद धोराजी में मुनक्किदा तकरीब में कौमी जज्बे का भरपूर इजहार किया गया। अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह की क़यादत में जश्न आज़ादी के सिलसिले में रैली भी निकाली गई, जिसमें शुरका ने हाथों में कौमी परचम उठा रखे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अल्लामा मुजफ्फर हुसैन शाह का कहना था कि आज़ादी अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। वतन की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए पूरी कौम को मुत्तहद होकर अपना किरदार अदा करना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वतन अजीज दिया है, जो दो कौमी नज़रिए पर हासिल हुआ निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, तो इसमें तरक्की और तामीर के लिए जो हमारी एक फ़र्द होने की हैसियत से, एक शहरी होने के हवाले से जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी हमें हमेशा याद रहे और अपने गली कूचे, अपने रिश्तेदार और अपने दिगर लोगों के साथ वो तमाम जिम्मेदारियां अदा करें। सदर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पीपल्स पार्टी इकबाल सांग का कहना था, पाकिस्तान हमारी पहचान और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है। हर साल वो ये तकरीब यहाँ मनाते हैं और पुरजोश अंदाज में मनाते हैं। अहले इलाका, मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, पॉलिटिकल, समाजी वर्कर सब यहाँ आते हैं, उनके साथ उनकी शाना बचाना, इस परचम कुशाई में शिरकत करते हैं। मैं समझता हूँ कि अगस्त के महीने में सिलसिला जारी रहता है
और हर मकतबा फ़िक्र के लोग सेलिब्रेशन में अपना हिस्सा डालते हैं। तो बेसिकली हमारा ताल्लुक तो पीपल्स पार्टी से, लेकिन चूँकि पाकिस्तान के परचम की बात है तो चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, किसी भी मकतबा फ़िक्र के लोगों पीपल्स पार्टी के कारकुन के साथ खड़े हो। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन हसनैन सिद्दीकी के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने यौम आज़ादी के पुरमसरत मौका पर 14 अगस्त को आम तातील का ऐलान कर दिया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन सेक्शन अफसर CTC अकील हुसैन माकू के दस्तखत से जारी किया गया, जिसके मुताबिक जुमा को सूबे भर में आम तातील होगी। सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। बाख्तियार अथॉरिटीज़ और बल्दियाती काउंसिल में भी आम तातील होगी। आगे बढ़े, आपको बताएं, सिंध के 20 ग्रेड के 3 अफसरान नेशनल कोर्सेज पर इस्लामाबाद जा चुके हैं। 3 अहम ओहदों के इजाफी चार्ज दीगर अफसरान के सपुर्द कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध के 20 ग्रेड के 3 अफसरान नेशनल वार कोर्स पर इस्लामाबाद जा चुके हैं। 3 अहम ओहदों के इजाफी चार्ज दीगर अफसरान के सपुर्द कर दिए गए हैं। सिंध के 20 ग्रेड के 3 अफसरान नेशनल वार कोर्स पर चले गए हैं। अफसरान में सेक्रेटरी खजाना फयाज अहमद जतोई, सेक्रेटरी वर्कर्स एंड सर्विसेज मोहम्मद नवाज सोहू और सेक्रेटरी मादनियात शाह जमान खोड़ू शामिल हैं। तीनों अफसरान नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 4 माह का कोर्स करेंगे। असगर अली मेमन को सेक्रेटरी खजाना लगा दिया गया है। असगर अली मेमन स्पेशल सेक्रेटरी खजाना के ओहदे पर बराजमान थे। सेक्रेटेरिएट मादनियात का इजाफी चार्ज जाहिद अली शर के सपोर्ट कर दिया गया है। जाहिद अली शर डायरेक्टर जनरल मादनियात के ओहदे पर बराजमान है। सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज का इजाफी चार्ज गुज़िश्ता रोज मोहम्मद याकूब के सपोर्ट कर दिया गया था। मोहम्मद याकूब एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन वर्क्स एंड सर्विसेज के ओहदे पर बराजमान हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध के 20 ग्रेड के 3 अफसरान नेशनल वार कोर्स पर इस्लामाबाद जा चुके हैं। 3 अहम ओहदों के इजाफी चार्ज दीगर अफसरान के सपुर्द कर दिए गए हैं। सिंध के 20 ग्रेड के 3 अफसरान नेशनल वार कोर्स पर चले गए हैं। अफसरान में सेक्रेटरी खजाना फयाज अहमद जतोई, सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज मोहम्मद नवाज सोहू और सेक्रेटरी मदनियात शाह जमान खोड़ू शामिल हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध के 20 ग्रेड के 3 अफसरान जो है नेशनल वार कोर्स पर इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। ये 3 अफसरान मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी हैं, जिसमें सेक्रेटरी मदनियात शाह जमान खोड़ू है, सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज मोहम्मद नवाज सोहू और सेक्रेटरी खजाना फयाज अहमद जतोई शामिल हैं, जो 4 माह का कोर्स नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में करेंगे, जिसके बाद वापस आएंगे। इस हवाले से बाद तौर पर इन महकमों के आर्जी चार्ज जो है महकमा खजाना का आर्जी चार्ज सेक्रेटरी का असगर अली मेमन के सुपर्द कर दिया गया है, जबकि असगर अली मेमन इस वक्त स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बराए खजाना के ओहदे पर विराजमान है, जबकि सेक्रेटरी मदनियात का आर्जी चार्ज जो है जाहिद हुसैन शहर के सुपर्द कर दिया गया, जबकि जाहिद हुसैन शहर इस वक्त डायरेक्टर जनरल मदनियात के ओहदे पर विराजमान है। इससे कबल जो है मोहम्मद याकूब मंगरू को जो है सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज का इजाफी चार्ज दिया गया, जबकि मोहम्मद याकूब मंगरू इससे कबल जो है एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के ओहदे पर विराजमान। ये तीनों अफसर आज जो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। उनका बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कोर्स होगा, जिसके बाद वापस आकर ओहदे संभालेंगे। जी आज़ाद नोहरिया तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आज़ाद, बहुत शुक्रिया। कोरंगी नंबर 1 और 1.5 के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। घरों में पानी की किल्लत के बायस शहरी महंगे दामों पानी खरीदने या बोरिंग के पानी पर गुजारा करने पर मजबूर हैं। तफसील रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। 10 बरस बीत गए, पानी ना आया। कोरंगी के मकीन आज भी मीठे पानी के मुंतजिर। कोरंगी नंबर 1 और 1.5 की लाखों की आबादी 10 बरस से मीठे पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। बोसीदा पानी की लाइनों के बाइस बेशतर इलाकों में सप्लाई मुतासिर है। बारहा शिकायत के बावजूद मसला मुस्तकिल तौर पर हल नहीं हो सका। ये वाई एरिया के अंदर तो बिल्कुल ही पानी नहीं आता किसी भी लाइन में। अपनी मदद आपके तहत आप बोर कराएं, काफी महंगी बोरिंग होती है। अब कैसे बोरिंग कराएं, किस तरह हम लोग अपना गुजारा करें। इलाका मकीनों का शिकवा है कि पानी के हुसूल के लिए दूर दराज इलाकों का सफर करना पड़ता है। बोरिंग का पानी भी हर घर की जरूरत पूरी करने के लिए काफी नहीं। पहले सही थी, अभी फिलहाल पानी बहुत टाइम हो गया है। हमारे को इधर 11 साल हो गए, कभी भी उधर चक्रागढ़ में मीठा पानी नहीं देखा है। कोरंगी नंबर 1 और 1.5 के मकीनों का कहना है कि पानी जैसी बुनियादी सहूलत के लिए उन्हें बरसों से मुश्किलात का सामना है। मुताल्लिका हुक्काम फौरी इक़दामात करते हुए इलाके में मीठे पानी की फराहमी बहाल करें। कैमरामैन अमजद के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।
गुलशन इकबाल का सोहबा अख्तर रोड भी मुकर्ररा मुद्दत में तामीर ना हो सका। 3 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर का इफ्तिताह 1 अप्रैल को किया गया था। मंसूबा 3 माह में मुकम्मल होना था। रोड पर सीवरेज लाइन तो बिछा दी गई, लेकिन सड़क की तामीर का काम कई रोज से बंद पड़ा हुआ है। तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। 3 माह का वादा, 4 माह का इंतजार। सहबा अख्तर रोड आज भी तकमील का मुंतजिर। गुलशन इकबाल का सहबा अख्तर रोड 3 माह में मुकम्मल होने का मंसूबा 4 माह गुजरने के बावजूद अधूरा रह गया। 1 अप्रैल को शुरू होने वाले तामीराती काम में सीवरेज लाइन तो बिछा दी गई, ताहम सड़क की तामीर कई रोज से बंद है। 3 किलोमीटर तवील सहबा अख्तर रोड की तामीर मुकम्मल होने की मुद्दत जुलाई में खत्म हो गई, मगर सड़क आज भी शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनी हुई है। सीवरेज लाइन बिछाने के बाद सड़क की तामीर का मरहला शुरू होना था, लेकिन काम रुकने के बाइस कई मकामात पर सड़क बदस्तूर नामुकम्मल है। और ट्रैफिक के लोग फंस जाते हैं, जिसको जल्दी वो निकल नहीं पाता, यहाँ फिर खड़े रहते हैं, ट्रैफिक इधर भी जाम, इधर भी वो सामने से भी, क्या करेगा। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि सहबा अख्तर रोड की तामीर दोबारा शुरू करके मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि इलाके के मकीनों को आमदोरफ्त की मुश्किलात से निजात मिल सके। कैमरामैन अमजद अली के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।